Hello student, I am Dr. A.S. Kandare, HOD, Department of Botany, KMC College, Khopoli. The title of our presentation is Anthoceros from Anthoceratopsida. So this is the presentation. Let us see the classification of Anthoceros. So you can see here, this is the actual photograph of Anthoceros. So here you can see the thallus and the erect sporophyte. The division of this Anthoceros is Bryophyta, class Anthoceratopsida, order Anthoceratops, family Anthocerataceae, and genus Anthoceros. So this is the plant from Bryophyta. Okay. Now first of all, we shall study vegetative structure, that is external features of the Anthoceros. So here is the description of this vegetative structure. It occurs in moist, shady and boggy or swampy habitats in subtropical and warm temperate regions. So you will find this Anthoceros in moist and shady or boggy places. Okay, so this is the most important thing that bryophyte need. The soil should be moist and it should be shaded or boggy or swampy. Okay, so this is the prime requirement for Anthoceros. The gametophyte are dorsiventral and often रोजेट लाइक. तो इसका मतलब होता है कि ये इसका जो थैलस है वो ऊपर और नीचे यानी कि डॉर्सल साइड में और उसके निचले हिस्से में यानी कि वेंट्रल साइड में डिफरेंशिएट हम कर सकते हैं. ओके, सो इट इज़ फ्लैट डॉर्सिवेंट्रल एंड रोजेट लाइक. ओके, on the ventral surface, many smooth-walled rhizoids are present, which help in anchorage and absorption. तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ब्रायोफाइटा में ट्रू रूट्स नहीं है कि नहीं. तो रूट्स absent है, उसके बजाय root like structure, isn't it, called rhizoids. So rhizoids are present and function of rhizoid is anchorage and absorption of water and mineral from the soil. तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ब्रायोफाइट के जो फीचर्स है वो थैलोफाइटा के फीचर है, जहाँ पर हम रूट, स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा कुछ भी नहीं मिलता है, isn't it? So therefore these are the thallophytes, isn't it? So these are the things that you have to consider here. Then scales and tuberculate rhizoids are absent. This is also speciality. Some species of Anthoceros are unisexual and others are bisexual. Okay, तो कई स्पेसीज जो होते हैं वहाँ थैलस के ऊपर एक ही सेक्स पाया जाता है कई स्पेसीज में, और ऐसे भी थैलस है इसके अंदर जहाँ पर मेल एंड फीमेल दोनों भी सेक्स ऑर्गन्स पाए जाते हैं. तो ये अलग अलग स्पेसीज में ये पाया जाता है. द एंथेरिडिया एंड आर्चोगोनिया आर संकन ऑन द डॉर्सल सरफेस ऑफ द गैमेटोफाइट. ओके, थैलोफाइटा में क्या होता है कि सेक्स ऑर्गन्स आर नॉट प्रोमिनेंट and specially these sex organs are hidden. Therefore these plants are also called as cryptogams, isn't it? तो उनके सेक्स ऑर्गन्स दिखाई नहीं पड़ते हैं, they are not prominent or easily located with naked eyes, therefore they are called cryptogams. तो आप यहाँ देखेंगे कि इसका एंथेरिडिया और आर्चोगोनिया जो है थैलस में एम्बेडेड होता है, isn't it? Numerous sporophytes may develop on the same gametophyte. तो आप पहले स्लाइड में देखा कि वहाँ पर थैलस के ऊपर बहुत सारे प्रोजेक्शंस बाहर आ जाते हैं
वो है स्पोरोफाइट। तो थैलस के ऊपर बहुत सारे स्पोरोफाइट डेवलप हो जाते हैं। देन वेजिटेटिव स्ट्रक्चर और एक्सटर्नल फीचर्स। तो जैसा मैंने बताया कि ये जो है ये प्रोजेक्टेड पार्ट्स है, ये थैलस नीचे है। सो यू कैन सी हियर दिस इज अ डार्क ग्रीन इन कलर थैलस, एंड फ्रॉम दिस थैलस न्यूमरस स्पोरोफाइट आर प्रोजेक्टेड। तो ये स्पोरोफाइट बाहर आ जाता है, ये नीचे प्रोस्ट्रेट थैलस है। दिस थैलस इज flat and attached to the soil surface, and from this thallus there are numerous sporophytes are produced. तो बहुत सुंदर दिख रहा है ये, isn't it? ये थोड़ा सा यंग थैलस है, ये मैच्योर थैलस है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि all these sporophyte are matured and spores are liberated. यहाँ पर आप देखेंगे कि ये स्पोरोफाइट मैच्योर हो रहा है, लेकिन इसके अंदर के जो स्पोर्स है दे आर नॉट लिबरेटेड। सो हियर यू कैन सी दीज एंड्स ऑफ द स्पोरोफाइट आर somewhat brownish in color and they are somewhat matured, isn't it? Shrunken, isn't it? जहाँ यहाँ पर फ्रेश और ग्रीन नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मैच्योर हो चुके हैं और इसके अंदर के स्पोर्स जो हैं वो लिबरेट हो गए। ओके, तो बहुत सुंदर दिख रहा है ये, isn't it? You can see here थैलस है ये, और थैलस से these are the sporophyte projected upward. So this is the vegetative structure of the Anthoceros. Here is the figure, isn't it? So here this is the thallus. तो आप देख सकते हैं कि थैलस कितना छोटा और सिंपल है, बहुत ही छोटा है, तकरीबन 1 इंच का हो सकता है, 1 इंच या उससे भी कम। तो छोटा सा थैलस है, isn't it? ये रोजेट टाइप का थैलस है। At the bottom or on the lower surface, isn't it? On the ventral surface there are minute and small rhizoids. यहाँ पर rhizoid दिख रहे हैं, ये रूट का काम करते हैं, isn't it? ब्रायोफाइट में ये रूट होते हैं, लेकिन they are not true roots, therefore it is called rhizoid. So this is the thallus and this is involucre, isn't it? Involucre of the sporophyte, and from this involucre sporophyte or sporangia are given out. Okay, they are ejected from this particular structure called involucre. तो यहाँ से ये स्पोरोफाइट इस प्रकार से बाहर आ जाते हैं। दिस इज अनदर स्पेसिस। सो यहाँ पर आप देखेंगे दिस थैलस इज प्रोस्ट्रेट एंड irregularly lobed, isn't it? And from this thallus, this is the lower portion of the sporophyte, it is called involucre, and through this involucre projects this erect capsule or sporophyte, isn't it? So here you can see this splitted sporophyte, isn't it? Spores are liberated. तो ये कंडीशन आप देखेंगे, यहाँ पर ये स्पोर अभी लिबरेट नहीं हुए हैं, सो ये स्पोरोफाइट ओपन नहीं है। सो हियर यू कैन सी ओपन स्पोरोफाइट। तो इसका मतलब इसके अंदर से जो स्पोर है, ऑल दिस स्पोर्स आर लिबरेटेड। सो हियर यू कैन सी दिस ए फिगर, थैलस ऑफ एंथोसेरस इरेक्टस, इजंट इट? ये एंथोसेरस इरेक्टस का थैलस है और ये एंथोसेरस लेबिस का थैलस है। तो अलग अलग किस्म के थैलस यहाँ पर पाए जाते हैं। ओके, सो दिस इज द figure, simplified figure. So you can draw this figure. So this is Anthoceros. Now we shall learn internal structure. So we shall take vertical section of the thallus. Now this is the description. Thallus is not differentiated into photosynthetic zone and storage zone. तो ये जो ब्रायोफाइट है ये सिंपल किस्म के प्लांट्स है। इनका जो थैलस है उसमें जो पूरे के पूरे सेल्स है, दे आर पैरेन्काइमेटस सेल्स, एंड दीज सेल्स आर नॉट मच डिफरेंशिएटेड। बहुत ही सिंपल किस्म का इसकी रचना होती है।
So photosynthetic region and storage regions are not differentiated. सारा के सारा थैलस के अंदर फोटोसिंथेटिक प्रोसेस होता है और हर सेल के अंदर फूड स्टोर किया जाता है। तो ऐसा कोई अलग फोटोसिंथेटिक रीजन और स्टोरेज रीजन इसके अंदर नहीं होता है। ऑल सेल्स आर ग्रीन एंड कंटेन क्लोरोप्लास्ट। ओके, ऑल द सेल्स ऑफ द थैलस, ये थैलस के अंदर जितने भी सेल है दे कंटेन क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट आर एसोसिएटेड विथ पायरेनॉइड्स which is a unique feature of Anthoceros. So here you can see क्लोरोप्लास्ट के साथ में पायरेनाइड्स होते हैं, ये स्पेशलिटी है एंथोसेरोस की। तो पायरेनाइड भी होते हैं और पायरेनाइड के साथ स्टार्च डिपोजिशन होता है। तो दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ एंथोसेरोस। देयर आर नो एयर चेम्बर्स और पोर्स इन द थैलस। तो थैलस के जो टिश्यू है, टिश्यू, दे आर कॉम्पैक्ट। Schizogenous cavities filled with mucilage are present. So थैलस के अंदर कुछ सेल्स जो है तो वो मर्ज हो जाते हैं, उनके वॉल्स ब्रेक हो जाते हैं, एंड दीज आर कॉल्ड साइजोजिनस कैविटीज़। थैलस के अंदर कुछ सेल्स इकट्ठा ब्रेक हो जाते हैं और एक कैविटी फॉर्म हो जाती है, एंड दैट कैविटी इज कॉल्ड साइजोजिनस कैविटी विच इज फिल्ड विथ म्यूसिलेज, isn't it? These are often inhabited by endophytic symbiotic nostoc, which is cyanobacteria, isn't it? Which supply nitrogen through nitrogen fixation to the host plant. तो ये बहुत अच्छा सिम्बायोसिस यहाँ पर देखा जा सकता है एंथोसेरोस में। तो एंथोसेरोस के साथ दिस नॉस्टॉक एस्टेब्लिशेस कॉन्टैक्ट, isn't it? नॉस्टॉक जो सेल्स है साइनोबैक्टीरिया की, तो वो क्या करते हैं कि ये इसका एंडोफाइटिक सिम्बायोसिस होता है, isn't it? तो एक किस्म का मैत्री होता है, एक दोस्ती होता है नॉस्टॉक और एंथोसेरोस के बीच में, एंड दिस नॉस्टॉक सप्लाई नाइट्रोजन टू द एंथोसेरोस, isn't it? और उसके बदले में नॉस्टॉक को वहाँ पर रहने के लिए जगह मिल जाती है थैलस के अंदर। तो एक किस्म का म्यूचुअलिज्म है ये ब्रायोफाइट और अलगी के बीच में। तो बहुत सुंदर किस्म का ये सिम्बायोसिस है, नॉस्टॉक के साथ ये एंथोसेरोस का थैलस रहता है। ये इसका स्पेशलिटीज़ को याद रखना है। अभी यहाँ पर फिगर है, सो यू कैन सी दिस इज़ द एक्चुअल फोटोग्राफ ऑफ वर्टिकल सेक्शन ऑफ एंथोसेरोस थैलस, isn't it? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दिस इज़ द साइजोजिनसली फॉर्म्ड कैविटी फिल्ड विथ म्यूसिलेज एंड नॉस्टॉक कॉलोनीज। तो यहाँ पर साइनोबैक्टीरिया आप देख सकते हैं, isn't it? और बाकी ऑल दिस थिंग्स आर पैरेन्काइमेटस सेल्स, isn't it? Thallus showing mucilage cavity. So this is the figure, isn't it? Now here you can see the drawing of the Anthoceros thallus. So this is the outline of the Anthoceros thallus, where you can see upper epidermis, lower epidermis, and mucilage cavities are there. And these mucilage cavities are towards the lower side of the थैलस। थैलस का जो निचला हिस्सा होता है वो हिस्से में ये म्यूसिलेज कैविटी ज़्यादा होती है, ऊपर के हिस्से में भी होती है, लेकिन टुवर्ड द लोअर साइड द concentration of this mucilage cavities are more. Now this is the ventral surface, निचला हिस्सा है। तो निचले हिस्से से आप देखेंगे स्मूथ वॉल रॉइज़ाइड्स आर इमर्जिंग आउट। तो यहाँ पर ये रॉइज़ाइड्स है, isn't it? तो ये इसका सेक्शन अगर अपन लेते हैं वर्टिकल सेक्शन तो इस प्रकार से दिखेगा। सो हियर यू कैन सी दिस अपर एपिडर्मिस, सिंगल लेयर्ड अपर एपिडर्मिस, एंड बिलो दिस अपर एपिडर्मिस दिस आर पैरेन्काइमेटस सेल्स। ये पूरे के पूरे पैरेन्काइमेटस सेल्स है। और नीचे यहाँ लोअर एपिडर्मिस है। सो हियर यू कैन सी लोअर एपिडर्मिस, एंड दिस थैलस इज समवेयर showing this mucilage cavity। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि mucilage cavity है, and within this mucilage cavity there are nostoc filaments। Okay, so this is the symbiosis. Nostoc and Anthoceros has a symbiotic relationship। Okay, this nostoc fixes nitrogen for Anthoceros, and Anthoceros
provide a kind of shelter to this nostoc. Okay, so here are rhizoids. Now you can see these are the pyrenoids. So prominent pyrenoids are there along with chloroplast. So here you can see this pyrenoid is enlarged here. So here you can see this is the chloroplast, and along with chloroplast there is a pyrenoid. Okay, chloroplast is there and on the chloroplast pyrenoid is there. Okay, ये dark जो है dot, it indicates pyrenoid. Here you can see this is the slime pore through which slime is communicated to the soil. So this slime pore is shown here. Okay, lower epidermis के ऊपर ये slime pores होते हैं. Okay, so this is the figure of nostoc in vertical section. Okay, so you have to learn it properly and you have to draw this in examination. Now let us see vegetative reproduction. Now reproduction is the most important thing in the life cycle of any organism. So here we shall learn first of all vegetative reproduction. In Anthoceras you will find vegetative and sexual reproduction. There is no asexual reproduction. So vegetative reproduction show different types of methods for propagation. So first of all fragmentation, which is a simple and the most method found in lower plants, that is bryophytes. So fragmentation occurs through progressive death and decay of posterior portions of the thallus. तो का पिछला हिस्सा जो है, जो ओल्डर होता है वो डीके हो जाता है उसका, और सामने वाला जो हिस्सा है जो फ्रेश होता है जिसमें मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं उसका फर्दर प्रोपेगेशन होता है एंड इट प्रोड्यूसेस न्यू प्लांट. ओके, तो इट इज़ अ वेरी सिंपल प्रोसेस ऑफ vegetative reproduction. Another vegetative reproduction method is formation of tubers. Okay, tubers are developed at the end of growing season under unfavorable condition. जब conditions favorable नहीं होते तो वो condition में tubers produce किया जाता है. These are with cork cells that are resistant to drought. तो ये cork cell जो होते हैं तो थोड़ा सा rough और thick cells होते हैं जो एडवर्स कंडीशन यानी कि पानी की कमतरता जब होती है तो उस सिचुएशन में ये प्रोड्यूस होते हैं और ये जो प्लांट है उसको पेरिनेट हो करने के लिए मदद करते हैं, यानी कि ओवरकम करने के लिए मदद करते हैं. एडवर्स कंडीशन आती है तो ओवरकम करना पड़ता है, पेरिनेट करता है ये ट्यूबर. ओके, सो देयरफॉर दिस ट्यूबर हेल्प्स टू पास ऑन एडवर्स कंडीशन. एडवर्स कंडीशन को पास ऑन करने के लिए, सर्वाइव होने के लिए ट्यूबर्स ज़रूरी है. अनदर स्ट्रक्चर इज डेवलप्ड ऑन स्पेसीज ऑफ द एंथोसेरॉस कॉल्ड जिम्मे. सो दीज आर द कप लाइक स्ट्रक्चर्स हैविंग ए शॉर्ट स्टॉक and produced on upper surface, that is on the dorsal, but specially they are present along the margin. थैलस का जो मार्जिन होता है वहाँ जिम में कप लाइक स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं एंड दे आर स्टॉक्ड. ओके, जैसे कि ये स्पेसिस यहाँ पर पता है एंथोसेरॉस ग्लैंडुलोसस, एंथोसेरॉस फॉर्मेसी, एंथोसेरॉस प्रोपेगिलिफेरस, ये जो है ये स्पेसीज़ है तो इनके अंदर ये जिम्मे फॉर्मेशन पाए जाते हैं. और ये जिम्मा जो है पेरेंट प्लांट से अलग हो जाता है एंड इट प्रोड्यूसेस न्यू थैलस. तो इस प्रकार से जिम्मे नाम के ये कप लाइक स्ट्रक्चर्स प्रोड्यूस किया जाता है फॉर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. अनदर मेथड इज़ परसिस्टेंट ग्रोइंग अपाइसेस. तो समर जब चालू हो जाता है, पानी कम हो जाता है तो कुछ जो एंथोसेरॉस के स्पेसीज़ है जैसा एंथोसेरॉस पियर्सोनी, एंथोसेरॉस फ्यूजिफॉर्मिस, तो ये जो है ये स्पेसीज के अंदर ये परसिस्टेंट अपाइसेस रह जाते हैं, यानी कि जो टिप वाले पोर्शन होते हैं थैलस के, तो टिप वाले जो पोर्शंस होते हैं वो परसिस्ट होते हैं, वो मरते नहीं हैं. पानी की कमतरता होने के बावजूद
समर में ये जो स्पेसीज है इनके अंदर थैलस का जो अगला हिस्सा होता है, टिप्स होते हैं, अपाइसेस होते हैं, वो जिंदा रहते हैं, परसिस्ट करते हैं, मरते नहीं हैं। और फिर जब फेवरेबल कंडीशन आ जाता है तो ये परसिस्टेंट अपाइसेस जर्मिनेट टू प्रोड्यूस एंटायर थैलस। तो इस प्रकार से आप देखेंगे इतना सिंपल किस्म का ये रिप्रोडक्शन करते हैं, isn't it? Then another slide you can see here in this slide, see fragmentation. It is a simple method. So here you can see this parent thallus, isn't it? Decay of older parts, है ना। तो जो ओल्ड पार्ट्स होते हैं उसका डिके हो जाता है और जो नए पार्ट वो रिजुविनेट होते हैं एंड दे प्रोड्यूस न्यू थैलस। So this is the simple method of reproduction. Then as I have mentioned that tuber formations are there. So in this there is formation of such tubers, and these are resistant to the drought condition, and these tubers are produced along the margins of the thallus. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो थैलस का मार्जिन है वहाँ पर ये ट्यूबर्स डेवलप हो जाते हैं और ये थैलस जो है जो बाद में मर जाता है, श्रिंक हो जाता है और ड्राई अप हो जाता है। और ये ट्यूबर्स सर्वाइव करते हैं अंडर रिटर्न ऑफ द फेवरेबल कंडीशन। दिस ट्यूबर्स जर्मिनेट टू प्रोड्यूस एंटायर थैलस। देन जिम्मे complex structures, and these are also produced on the upper surface of the thallus. So these are cup shaped stalked structures, छोटा सा स्टॉक होता है, बड़ा नहीं है, और कप लाइक स्ट्रक्चर है। एंड ये इसके अंदर ये रिप्रोडक्टिव जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करने वाले जो हिस्से हैं जिसे हम जिम्मा कहते हैं, तो ये जिम्मा जो एक स्पेशल सेल होता है, तो ये जब ज़मीन पे गिर जाते हैं अंडर फेवरेबल एंड ये प्रोड्यूस करता है पूरा थैलस। तो ये कप स्ट्रक्चर के अंदर ये तैयार होता है जिम में। परसेंट ग्रोइंग अपाइसेस, जैसे कि मैंने बताया कि ये जो थैलस है ये अंडर कंडीशन में समर में ये पूरा ड्राई हो जाता है, मर जाता है। लेकिन ये जो हिस्से होते हैं टिप्स अपाइसेस, these apices remain active, they does not die, they remain persistent, persist करते हैं, and under favorable condition they give rise to new thallus. So these are the simple methods that are observed in different species of Anthoceros for vegetative reproduction. Now let us see sexual reproduction, isn't it? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो oogamous टाइप का है एंथोसेरस के अंदर। मेल सेक्स ऑर्गन आप जानते हैं एंथेरिडिया, एंड द फीमेल इज आर्चिगोनिया। मेनी स्पेसीज आर मोनोशियस वाइल सम आर डायोशियस। तो ऐसे कुछ स्पेसीज है जहाँ मेल फीमेल एक ही प्लांट पे, और ऐसे भी कोई स्पेसीज है जहाँ मेल और फीमेल अलग अलग थैलस के ऊपर डेवलप होते हैं। ओके, दोनों भी है। तो फॉर्मेशन ऑफ सेक्स ऑर्गन्स आर डिपेंडेंट photo period. So this Anthoceros is sensitive to photo period. As you know, plants are sensitive to photo periods, and depending upon photo period their cycle varies. So here you can see this Anthoceros is also photo period sensitive. तो ये विंटर में ज़्यादा करके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आ जाता है, isn't it? Especially in winter season. Anthoceros being a short day plant है ये, isn't it? So during winter you will find the day is short. So therefore in winters produces 6 organs. Antheridia develop much earlier to the Archegonia. So this is also one of the important feature found in Anthoceros, and Antheridia matures before Archegonia. Then सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अभी एंथेरिडिया देखेंगे हम पहला। इट इज़ अ मेल सेक्स ऑर्गन एंथेरिडिया। ओके, इट ऑकर्स ऑन डॉर्सल सरफेस ऑफ थैलस in an acropetal succession inside closed cavity called antheridial chamber. So you will find that this antheridia is produced in a chamber, in a cavity, which is called
antheridial chamber. Right. So this cavity is present within the thallus, parenchymatous tissue. It is differentiated into a long stalk and club-shaped body. So it has two parts only, a stalk and a racket-shaped or club-shaped body. The stalk is multicellular, isn't it? It is slender, consisting of 4 vertical rows of elongated cells. So after looking at the figure, you will get an idea what type of the structure this antheridia. तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक मल्टीसेलुलर स्टॉक होता है और उसके ऊपर एक वर्टिकल ये 4 वर्टिकल रोज का ये स्टॉक है और वो स्टॉक के ऊपर रैकेट शेप्ड और क्लब शेप्ड एंथेरिडिया होता है. ओके. The club shaped body of the antheridium has a single layered sterile jacket. So it is covered with a sterile jacket, which is a protective layer enclosing a mass of androcytes which metamorphose into biflagellated curved antherozoids. तो ये एंड्रोसाइट्स जो है, तो ये एंड्रोसाइट जो होते हैं एंथेरोजॉइड मदर सेल होता है और इसका रूपांतर बायोफ्लैजेलेटेड एंथेरोजॉइड में होता है. So this antherozoid has a 2 flagella. With the help of this flagella, it can swim into a film of water. Okay. So structure देखिए. अभी यहाँ पर जैसा कि हमने बताया कि this antheridia, which is a male sex organ, is developed within a cavity which is called antheridial cavity or antheridial chamber. So here you can see this is a chamber within this tissue. This is the roof of the chamber or radial chamber. Here you can see it is a stalked body. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको ये स्टॉक है, isn't it? 4 वर्टिकल रोज है, ये 2 सामने है 2 पीछे है. तो इस प्रकार से ये सामने वाले 2 वर्टिकल रोज दिख रहे हैं और इसके पीछे साइड में और 2 है, तो 4 वर्टिकल सेल वाला ये उसका स्टॉक है. And on this stalk you will find a club shaped or a racket shaped this body, isn't it? So this structure has a single layer antheridial wall. It is called jacket, and within this jacket you will find androcyte mother cell, isn't it? तो ये पहले एंड्रोगोनल सेल होता है और बाद में इट इज़ कन्वर्टेड इनटू एंड्रोसाइट मदर सेल. तो ये मियोसिस होने के पहले एंड्रोगोनल सेल्स, आफ्टर मियोसिस these are called androcyte mother cell, and this androcyte mother cell undergo metamorphosis to produce haploid biflagellated antherozoid और sperm. तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि दिस मेल सेक्स ऑर्गन और उसका ये कैविटी एंथोसेरस का ये एंथेरिडियल कैविटी, उसके अंदर ये मेल सेक्स ऑर्गन डेवलप होते हैं. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एंथेरिडियम. सो हियर इज फिगर, isn't it? Simplified figure. So here same things are illustrated here. So these figures are convenient for drawing. You can draw with the help of pencil. Okay. So same things are there. The stalk है, racket shaped this body है, androgonal cells. Then after meiosis, androcyte mother cells, and from this androcyte mother cells, such mature or mature sperm is produced. You can see these are the slightly S-shaped this sperm having 2 flagella. So here you can see 2 flagella, isn't it? So here you can see this antheridia liberating androcyte, okay, antheridial chamber. So this is a figure of antheridia of Anthoceros. Here is the figure of mature antherozoid or sperm. So here you can see this is the curve shaped or S-shaped this male gamete with haploid nucleus. So here is nucleus
and here you can see this at this curved end there is remnant cytoplasmic droplet. So remaining cytoplasmic droplet is there. तो जहाँ ये इसके अंदर जब बनता है वो एंथ्रेडिया के अंदर, तो वहाँ का जो एक साइटोप्लाज्म थोड़ा सा रह जाता है, वो यहाँ पर ऐसा एक ड्रॉप के जैसा ये इसको चिपक जाता है। तो ऐसा इसका स्ट्रक्चर है। सो हियर यू कैन सी दिस whiplash flagella, isn't it? So with this help of flagella, this antherozoid can swim into the film of water. ये स्विम करता है और स्विम करते करते आर्चोगोनिया की तरफ माइग्रेट होता है। तो दिस इज द फिगर ऑफ एंथोसेरस एंथ्रोजॉइड। ओके, नाउ लेट अस सी आर्चोगोनिया। अभी एंथ्रेडिया को हमने देखा, अभी आर्चोगोनिया कैसा है। दीज आर एम्बेडेड द डॉर्सल सरफेस ऑफ द थैलस इन एन एक्रोपेटल सक्सेशन नियर ग्रोइंग पॉइंट। तो ये जो ग्रोइंग पॉइंट होता है थैलस का, वो रीजन में ये जनरली डेवलप होते हैं। द आर्चोगोनियल चेम्बर्स आर absent, इसको चेम्बर नहीं है, इट इज़ एम्बेडेड, है ना, इट इज़ एम्बेडेड इन द थैलाइड टिश्यू। सो ये दिस सेक्स ऑर्गन डज नॉट possess any chambers. It is flask shaped consisting of a neck and venter. So these are the two important things, that it possesses neck and a venter, isn't it? So it appear like a flask or flower pot. So after looking at the figure you will get an idea what is the exact shape of the archegonia. It consists of 4 to 6 neck canal cells, a venter canal cell and an egg. So this is the internal organization of the cells of archegonia. 4 से लेकर 6 अलग अलग स्पेसीज में नेक कैनाल सेल होते हैं, एक वेंटर कैनाल सेल होती है और उसके नीचे एक एग होता है विच इज हैप्लॉइड। ओके, एट मैच्योरिटी द नेक कैनाल सेल डिसइंटीग्रेट एंड बिकम म्यूसिलेजिनस। तो व्हेन दिस आर्चोगोनिया मैच्योर्स एंड व्हेन इट गेट्स रेडी फॉर फर्टिलाइजेशन, all this neck canal cell and venter canal cell disintegrate and it is converted into mucilage. एक mucilage तैयार हो जाता है। There are no jacket cells covering archegonia. So archegonia lacks external coating called jacket. 4 cover cells or lead cells are found at the tip of the archegonium. Okay, so this elongated neck of the archegonia is covered with lead cell, isn't it, at the tip of the archegonia. So this is the description of archegonia. Now let us see the structure, isn't it? So here is the figure. So as we have described, so this is the neck, isn't it? This neck region and this bulbous bottom, isn't it? So you can see it appears like a flower pot or flask, isn't it? Here at the tip you can see 4 cover cells, 2 सामने और 2 पीछे हैं, तो ये 4 cover cells है and these cover cells close the opening of this neck. तो ये neck को open करता है और ऊपर ये surface है, dorsal surface of the thallus. So here you can see this archegonia is embedded into the parenchymatous thallus tissue. तो ये you can see these are the thallus tissue and this archegonia is embedded into the thallus tissue. Okay, so here you can see this neck canal cell, 1 2 3 4 neck canal cells. So as we have mentioned 4 to 6 neck canal cells depending upon the species. अलग अलग species में 4 से लेकर 6 तक neck canal cell होते हैं और एक ये venter canal cell होता है and below this venter canal cell you can say haploid egg cell is there. So this is the haploid egg cell. So this is the simple organization of archegonia, isn't it? The same thing is illustrated here also, isn't it? यहाँ पर थोड़ा सा 1-2 egg cell ज़्यादा है neck canal cell, तो 4 से 6 neck canal cell, उसके नीचे ये venter canal cell, उसके नीचे ये egg cell which is haploid और ये lead cell है, isn't it? यानी कि ऊपर का ये cover cell बोलेंगे इसको, lead और cover cell, isn't it? तो इस प्रकार की ये रचना है archegonia की. Okay, so female sex organ. Now these female sex organ and male sex organs
we are learning here. This is a simplified figure of archegonium. So here you can see, isn't it, neck canal cell है, isn't it, neck canal cells भी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, all these neck canal cells, and below this neck canal cell you can see this ventral canal cell, isn't it, this is ventral canal cell, and below this ventral canal cell egg cell is. So this is the very nice figure of mature archegonium. Okay, तो इस प्रकार से अभी archegonia and antheridia produces gametes, again, तो male gamete is antherozoid or sperm and female gamete is egg. Now both are ready for fertilization. So this fertilization takes place in a film of water, isn't it? तो पानी ज़्यादा नहीं लगता है, एक पानी की एक लेयर भी उसके लिए सफिशिएंट है. The antherozoid swim in the water film because antherozoid possessed by flagella. Two flagellas are there. So therefore it swims. Some of these reach mature archegonium. तो बहुत सारे antherozoid swim करते हैं और they approach towards archegonia, isn't it? Then mature archegonium is characterized by the chemotactically active mucilaginous mound at its apex. जैसा मैंने बताया कि ये नेक कैनाल सेल और वेंट्रल कैनाल सेल डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं और उससे एक म्यूसिलेज का मास बन जाता है जो लीड सेल को ब्रेक करके वो नेक कैनाल के ऊपर टिप पे जमा हो जाता है, तो उसको हम म्यूसिलेज माउंट कहते हैं, isn't it? तो ये पूरा म्यूसिलेज इकट्ठा हो जाता है at the tip of the archegonia, and this contains some chemicals which attracts antherozoid or male gamete, and this activity is called chemotactic activity, isn't it? यानी कि this mucilaginous mound contains some chemicals, and these biochemicals attract male gamete, and this activity of the mucilage is called chemotactic activity. So attraction of the male gamete is effected by chemotactic activity of mucilage mound, isn't it? तो ये archegonia का बहुत अच्छा एक्टिविटी है, it is a physiological action of archegonia to attract the male gamete. The antherozoids pass through mucilage and enter into wide open canal. So बहुत सारे एंथेरोजॉइड्स आ जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं, लेकिन एक एंथेरोजॉइड नेक का जो पैसेज होता है तो वो नेक कैनाल में से पास हो करके इट रीचेस टू द फीमेल गैमेट, दैट इज एग, और वहाँ पर वो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है. सिंगल एंथेरोजॉइड फ्यूज विथ एग टू फॉर्म ए डिप्लॉयड ज़ाइगोट. तो अंततः क्या होता है कि एक ही एंथेरोजॉइड एग के साथ फ्यूज हो जाता है. So haploid antherozoid fuses with haploid egg to form diploid zygote. So it is a very simple process, isn't it? The male gamete which is haploid and this female egg which is haploid, they fuse together to produce diploid zygote. तो इस प्रकार से यहाँ पर फ्यूजन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, isn't it? So here you can see the figure. So this figure indicates that this mature antheridium and this antheridium burst open, liberating number of antherozoids. Again androcyte mass, इसके अंदर सारा mature sperm है. So this is the sperm, mature sperm, and this sperm now ready to swim, isn't it? Now here you can see disintegrated neck canal cells. So here you can see neck canal cells पूरा disintegrate हो गया, ventral canal भी disintegrate हो जाता है, and this disintegrated cells produce a passage in this particular neck region. तो यहाँ पर एक पैसेज तैयार हो जाता है for the entry of the antherozoid. Okay, and ये जो disintegrated cell का mass है, it is converted into mucilage, and therefore you will find that this mucilage
accumulate at the tip of the archegonia. So here you can see this mucilage mound, है क्या नहीं, यहाँ पर बताया है ये mucilage mound है, and this mucilage mound is nothing but disintegrated material, and this disintegrated material originating from this neck and ventral canal cell destruction, ये डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं पूरे सेल, डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, उससे जो म्यूसिलेज बनेगा दैट म्यूसिलेज एक्यूमुलेट्स एट द टिप ऑफ द archegonia, and this particular mound or accumulated mass of this mucilage is called mucilage mound, and this mucilage mound is acts as chemotactically, है ना, इसके अंदर जो भी केमिकल्स है स्पेशली मैलिक एसिड वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं, दे अट्रैक्ट दिस मेल गैमेट, एंड दिस मेल गैमेट get attracted towards this mucilage mound. So this is called chemotactic activity of archegonia because of this mucilage mound. तो इस प्रकार से ये आकर्षित हो जाता है and it swims along with its these two flagella and reach to the archegonia. Okay. और फिर बाद में क्या होगा, this antherozoid enters into this canal and ultimately it reached to the bottom of the archegonia where egg is lying, and along with this some mucilage it approaches near to female gamete, and you will find that male nuclei and female nuclei fuse to produce a diploid structure called zygote. Okay, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये zygote का formation हो गया है. So in this way you can see this formation of zygote and fertilization. Okay, so this is the process of fertilization illustrated in the figure. So you have to learn it very carefully and properly. अभी zygote तैयार होने के बाद next stage is sporophytic stage, production of sporophyte और sporogonium. तो ये zygote जो होता है ये germinate होता है, कहाँ germinate होगा, so it will germinate within the archegonial चेम्बर. अर्चेगोनिया जो जहाँ होता है वहीं फर्टिलाइजेशन होने के बाद ज़ायगोट तैयार होगा, है या नहीं. ये ज़ायगोट तैयार होने के बाद ये यहाँ पर ही इसी जगह पर ये स्पोरोफाइट डेवलप होना शुरू हो जाता है, यानी कि गैमेटोफाइटिक प्लांट के ऊपर ही स्पोरोफाइट तैयार होना शुरू हो जाता है. तो यहाँ ये दिस इज़ द प्लेस हियर ओनली दिस ज़ायगोट अंडरगो रिपीटेड डिवीजन टू प्रोड्यूस sporophyte. So here you can see in Anthoceros that sporophyte is produced on gametophyte itself, and it is called sporogonium or sporophyte. The sporophyte is differentiated into two distinct regions. तो अभी ये sporophyte जो है ना, it is having two major parts, isn't it? कौन से parts है इसके अंदर, एक है foot, isn't it? It is basal bulbous parenchymatous structure found deeply एम्बेडेड इन द गैमेटोफाइट. तो ये गैमेटोफाइट के टिश्यू में ही डेवलप होता है, एक बल्बस पार्ट होता है, बेसल पार्ट, विच इज़ कॉल्ड फुट. इट हेल्प्स इन अटैचिंग द स्पोरोफाइट टू गैमेटोफाइट एंड इन एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द गैमेटोफाइटिक टिश्यू. तो ये नाम का जो ये स्पोरोफाइट का हिस्सा होता है दैट इज एम्बेडेड इनटू द पैरेन्काइमेटस थैलस of the gametophytic plant, isn't it? ये फूट एक होता है. उसके बाद में कैप्सूल, ये इलोंगेटेड स्ट्रक्चर होता है, फूट से ओरिजिनेट होता है ये कैप्सूल, ये ऊपर वाला हिस्सा है कैप्सूल का. इट इज़ फर्टाइल, isn't it? ये फर्टाइल रीजन है. मेजर एंड कॉन्स्पिक्यूअस पार्ट्स ऑफ द स्पोरोफाइट, ये बड़ा हिस्सा होता है स्पोरोफाइट का, बहुत प्रोमिनेंट है, isn't it? कॉन्स्पिक्यूअस है कैप्सूल, जो कि थैलस के ऊपर दिखता है हमको, हमने फिगर में और फोटोग्राफ में भी देखा है स्पोरोफाइट कैसा दिखता है, isn't it? तो ये कैप्सूल का हिस्सा है स्पोरोफाइट, विच इज़ लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल. इट इज़ ग्रीन व्हेन यंग बट टर्न्स ग्रे और ब्राउन ऑन मैच्योरिटी. तो मैच्योर होने के बाद इसका हरा रंग बदल के ये ब्राउन बन जाता है. ए नैरो जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स लोकेटेड बिटवीन द बेसल फुट एंड द अपर कैप्सूल. These cells help in the continuous growth of the sporophyte. तो इसके अंदर ये फुट और कैप्सूल के बीच में एक रीजन होता है
which is consisting of meristematic cells, and these meristematic cells keep on dividing, and therefore the growth of the sporophyte takes place. ये मेरिस्टेमेटिक रीजन की वजह से ही स्पोरोफाइट का ग्रोथ होते रहता है, isn't it? So these are the two major parts of sporophyte or sporogonium. Okay, the capsule. अभी ये जो कैप्सूल का हिस्सा है, जैसा कि यहाँ पर हमने देखा कि फूट है और ये कैप्सूल है. अभी ये कैप्सूल इज इम्पॉर्टेंट. फूट तो बताया हमने कि बेसल बल्बस पोर्शन होता है, वो एब्सॉर्प्शन के लिए काम आता है. और एब्सॉर्प्शन क्या करता है ये फूट? वाटर और सम न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द गैमेटोफाइटिक टिश्यू. लेकिन ये कैप्सूल जो होता है इट प्रोड्यूसेस स्पोर, और इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, isn't it? So this capsule is composed of the following structures. तो कैप्सूल के अंदर एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, इट इज़ कॉल्ड कॉलुमेला. इट इज़ सेंट्रल सॉलिड कोर ऑफ स्टेराइल सेल्स consisting of 16 vertical rows of cells. It extends from the base to almost to the tip of the capsule. तो ये जो स्पोरोफाइट होता है, कैप्सूल जो होती है उसके सेंटर में एक इलोंगेटेड स्टेराइल पोर्शन होता है. इट इज़ कंसिस्टिंग ऑफ 16 वर्टिकल रोज ऑफ द सेल्स, isn't it? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट जो पार्ट है कॉलुमेला, लेकिन ये स्टेराइल है, isn't it? It just support to the कैप्सूल. इम्पोर्टेंट अभी ये बात है कि यहाँ पर ये स्पोरोजेनस टिश्यू है. इट इज़ ऑफ फर्टाइल स्पोर फॉर्मिंग सेल. तो ये फर्टाइल रीजन है, कॉलुमेला इज नॉट फर्टाइल. सो स्पोरोजेनस टिश्यू इज द मास ऑफ फर्टाइल स्पोर फॉर्मिंग सेल्स सराउंडिंग द कॉलुमेला. तो ये कॉलुमेला के दोनों साइड में ये स्पोरोजेनस टिश्यू होता है. कॉलुमेला सेंटर में होता है, एंड ऑन द आइदर साइड ऑफ द this columella you will find this fertile region called sporogenous tissue. Like a dome at the base of the capsule, it is single layered and called archosporium. तो ये जो कॉलुमेला है उसके ऊपर ये कवर करता है ये अर्चोस्पोरियम. ये अर्चोस्पोरियम से ही स्पोरोजेनस टिश्यू पैदा होते हैं. अर्चोस्पोरियम इज द बेस, एंड फ्रॉम दिस बेसिक टिश्यू this sporogenous tissue are generated. It becomes 2 to 4 layered and develops into diploid spore mother cells upward, isn't it? तो इसके अंदर diploid spore mother cells होते हैं ये archosporium के अंदर. Towards the tip of the capsule, the spore mother cells divide by meiosis and produce haploid spore. तो शुरू में ये archosporium के अंदर जो spore mother cells होते हैं they are diploid, and these diploid spore mother cells undergo meiosis, and after meiosis they produce haploid spore. तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो जाइगोट है ये डिप्लॉयड होता है, और बाद में अर्चोस्पोरियम के अंदर जो सेल्स है स्पोर मदर सेल्स वो डिप्लॉयड होते हैं. और अल्टीमेटली जैसा ये ऊपर के हिस्से में अगर हम देखेंगे कैप्सूल के, देयर इज ए प्रोसेस गोइंग ऑन of meiosis, and after meiosis there is formation of haploid spore. तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि कैप्सूल के निचले हिस्से में डिप्लॉयड स्पोर मदर सेल्स है, और ऊपर के हिस्से में आप देखेंगे कि meiosis होने के बाद हैप्लॉइड स्पोर तैयार हो जाते हैं. तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि ये स्पोरोफाइट के अंदर हैप्लॉइड स्पोर बनते चले जाते हैं, isn't it? So here you can see another part of the capsule which is called capsule wall. It is the outer wall of the capsule which is 4 to 6 layers in thickness. The outermost layer is called epidermis, which is interrupted by stomata. The inner layer consists of chlorenchymatous cells and are photosynthetic. So this is the speciality of the Anthoceros sporophyte, isn't it? Outer layers to the sporogenous tissue consisting of chlorenchymatous cells, and these chlorenchymatous cells are photosynthetic. So therefore you can see this sporophyte is autotrophic. खुद का जो फूड है ये खुद बनाता है स्पोरोफाइट, और खाली जो कुछ वाटर और न्यूट्रिएंट्स लगते हैं उतना ही ये बल्बस फूड एब्सॉर्ब कर लेता है,
इसलिए दिस पर्टिकुलर sporophyte of Anthoceros is semi parasite on the gametophyte, isn't it? ये पूरा की पूरा इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट नहीं है, दिस इज डिपेंडेंट अपॉन द गैमेटोफाइट। तो इस प्रकार से कैप्सूल वॉल फोटोसिंथेटिक होता है। हियर यू कैन सी दिस figure. So here you can see this is the foot, bulbous foot, which is embedded into the थैलस, है ना, गैमेटोफाइटिक थैलस के अंदर ये फुट है। और ये फुट के ऊपर यहाँ पर आप देखेंगे कि एक छोटा सा रीजन है विच इज़ कॉल्ड मेरिस्टेमेटिक रीजन। तो ये मेरिस्टेमेटिक रीजन से ये कैप्सूल ऐसा बढ़ते रहता है ऊपर, इसका ग्रोथ होते रहता है। इट्स अ मेरिस्टेमेटिक रीजन इज देयर, ए स्मॉल मेरिस्टेमेटिक रीजन, एंड this region go on adding these cells. So central portion is called columella, which is sterile. So here you can see this columella is there, isn't it? It is indicated here. You can see columella central portion है, और ये columella के दोनों साइड में sporogenous cells होते हैं, isn't it? And here you can see this archosporium is there. ये नीचे जो स्पोर मदर सेल्स है वहाँ से वो जैसा आगे ऊपर बढ़ते जाएंगे तो हियर यू कैन सी मैच्योर स्पोर पैदा होते रहते हैं यहाँ पे, अलॉन्ग विद दिस इलेटर्स नाम के स्टेराइल कुछ सेल्स होते हैं अलॉन्ग विद दिस स्पोर्स। सो हियर यू कैन सी दिस इज द portion where you can see mature haploid spores are produced. So here you can see these are the spores, and यहाँ पर ये इलेटर्स नाम के सेल्स होते हैं, सुडो इलेटर्स, दे आर न्यूट्रिटिव इन फंक्शन। तो इसके ऊपर ये जो स्पोर्स होते हैं इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं सुडो इलेटर्स, राइट। सो हियर यू कैन सी द सेंट्रल पोर्शन, elongated central portion, columella consisting of 16 elongated vertical cells। तो ये 16 वर्टिकल रोज होते हैं, सो ये बनता है कॉल्यूमेला, और ये मैच्योर स्पोर्स है, टेट्राइड्स, स्पोर्स टेट्राइड्स बोलते हैं इसको। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि ये स्पोरोफाइट है, एंड दिस स्पोरोफाइट प्रोड्यूसेस स्पोर्स। So here is the detailed figure of Anthoceros, longitudinal section of sporophyte or sporogonium. So here you can see the basal portion is foot. तो यहाँ पर आप देखेंगे कि this is the foot, bulbous foot, which is embedded into this gametophytic tissue. Then immediately above this foot is meristematic layer, and this meristematic layer produces these new cells. New cells are added, and this capsule is elongated. This is the involucre, ये स्पोरोफाइट के बेस को ये प्रोटेक्शन है जिसे कहते हैं इन्वोलुकर। नाउ हियर यू कैन सी दिस सेंट्रल पोर्शन, दिस सेंट्रल कॉलुमेला। सो ये ट्रांसफर सेक्शन के अंदर भी आप कॉलुमेला देख सकते हैं। सो दिस इज द स्टेराइल कॉलुमेला। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि कॉलुमेला ये बेस से लेकर के ऊपर तक ये कॉलुमेला आपको दिखाई देगा। सो दिस इज़ द कॉलुमेला, ये कॉलुमेला है विच इज़ स्टेराइल, और ये कॉलुमेला के दोनों साइड में हियर एंड हियर यू कैन सी दिस इज़ द फर्टाइल रीजन, ये फर्टाइल रीजन है। तो ये फर्टाइल रीजन जो है तो आर्चोस्पोरियम कहते हैं इसको, क्योंकि ये जब ये स्पोरोफाइट इमैच्योर होता है तो ये ऐसा डोम शेप्ड ऊपर इसको कवर करता है कॉलुमेला को, देयरफॉर इट इज कॉल्ड आर्चोस्पोरियम, ये आर्चोस्पोरियम होता है। लेकिन ये जो यहाँ निचले हिस्से में जो सेल्स है स्पोरोजिनस सेल्स, ये यहाँ पर लिखा है स्पोरोजिनस सेल्स, यहाँ पर बताया देखिए ये स्पोरोजिनस सेल्स है। धीरे धीरे ये स्पोर मदर सेल्स बनते जाते हैं। सो हियर यू कैन सी दिस स्पोर मदर सेल्स, and from these spore mother cells mature spores are produced, and it is called spore tetrads. Along with the spore tetrads there are some sterile cells called pseudoelaters, and these pseudoelaters are intermingled with this spore tetrads. ये spore tetrads के साथ ये spore mother cell भी होते हैं, and these pseudoelaters
isn't it? Pseudo-elaters provide nutrition to the growing these spores or spore tetrads. So that is the function of elaters. और ये लिबरेशन भी मदद करता है. दिस सूडो इलेटर्स हेल्प इन न्यूट्रिशन एज वेल एज इन लिबरेशन ऑफ द स्पोर टेट्रैड्स. तो यहाँ पर आप ये ट्रांसफर सेक्शन में देखेंगे ये स्पोर टेट्रैड भी दिख रहे हैं और सूडो इलेटर्स भी दिख रहे हैं ट्रांसफर सेक्शन में. और ये वर्टिकल सेक्शन में भी आप देख सकते हैं हियर स्पोर टेट्रैड्स अलॉन्ग विथ सूडो इलेटर्स, इलेटर सेल्स यहाँ पर लिखा है. तो इलेटर्स और सूडो इलेटर्स से दो किस्म के स्टेराइल सेल्स ये स्पोर के साथ होते हैं, इज इट. एंड हियर यू कैन सी दिस कैप्सूल वॉल, 4 से 6 लेयर का कैप्सूल वॉल होता है. एंड दिस कैप्सूल वॉल इज क्लोरेनकाइमेटस बिकॉज इट कंटेन्स क्लोरोप्लास्ट, इसलिए इसको क्लोरेनकाइमेटस सेल बोलते हैं. तो ये भी साइड में है और इधर भी है. तो दोनों तरफ आप देखेंगे कि ये क्लोरेनकाइमेटस cells होते हैं. एंड दिस क्लोरेनकाइमेटस सेल्स आर फोटोसिंथेटिक इन नेचर, so therefore they synthesize their own food material. That is the speciality of the sporophyte of Anthoceros. So therefore Anthoceros का sporophyte है वो एटोट्रॉफिक है लेकिन सेमी पैरासाइट है, क्योंकि इसका जो बल्बस बेस है ये बेस जो है फुट इट इज़ एम्बेडेड इनटू द गैमेटोफाइट टिश्यूज़. और फ्रॉम दिस गैमेटोफाइटिक टिश्यू इट एब्सॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल. बाकी कुछ लेता नहीं है. ये वाटर एंड मिनरल ये गैमेटोफाइटिक टिश्यू से लेता है और ये पूरे डेवलपिंग जो कैप्सूल है उसको प्रोवाइड करता रहता है. लेकिन सिंथेसिस भी चालू है यहाँ पर, बिकॉज ये साइड में और ये साइड में ये फोटोसिंथेटिक टिश्यू है कैप्सूल के, दे फोटोसिंथेसाइज. सो न्यूट्रिशन ये खुद का खुद कर लेता है, लेकिन सिर्फ लेता क्या है तो वाटर और मिनरल नीचे से लेता है गैमेटोफाइटिक टिश्यू से. तो इसीलिए इसको सेमी पैरासाइट कहते हैं ऑन द गैमेटोफाइटिक टिश्यू. और ये बाहर का लेयर है ना, एक्सट्रीमली आउटर लेयर. सो दिस इज एपिडर्मल लेयर, ये सिंगल लेयर है, एपिडर्मल लेयर है. सो हियर यू कैन सी दिस एपिडर्मल लेयर आल्सो, इजंट इट. सो इस प्रकार से सेंटर में दिस इज कॉलुमेला विच इज स्टेराइल और उसके दोनों बाजू में ये स्पोरोजिनस लेयर्स हैं वर्टिकली अरेंज्ड. दे प्रोड्यूस स्पोर्स, isn't it? स्पोरोजिनस टिश्यू स्पोर प्रोड्यूस होते हैं. और उसके बाजू में दोनों साइड में दिस क्लोरेनकाइमेटस सेल्स है. दे आर फोटोसिंथेटिक इन नेचर एंड एक्सट्रीमली आउटसाइड इज एपिडर्मल कवरिंग. तो इस प्रकार का अरेंजमेंट ये स्पोरोफाइट में होता है. तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड हियर, isn't it? तो यहाँ पर जो आप देखेंगे ये फुट रीजन है एंड दिस फुट रीजन इज बल्बस पोर्शन. और यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ये सेंटर में ये स्टेराइल कॉलुमेला, ये कॉलुमेला हो गया स्टेराइल कॉलुमेला, इज़न्ट इट. ये स्टेराइल कॉलुमेला यहाँ पर देख रहे हैं आप, दिस इज स्टेराइल कॉलुमेला, इज़न्ट इट. उसके बाद में स्टेराइल कॉलुमेला के बाद बाजू में दोनों बाजू में ये फर्टाइल लेयर ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू, ये फर्टाइल लेयर हो गया, इज़न्ट इट. ये फर्टाइल लेयर हो गया. और फिर ये फर्टाइल लेयर के दोनों बाजू में क्लोरेनकाइमेटस सेल्स के ये लेयर हैं, लेकिन इस क्लोरेनकाइमेटस तो दे आर फोटोसिंथेटिक. और सबसे फिर बाहर का हिस्सा है वो है एपिडर्मल लेयर. तो ये एपिडर्मिस हो गई इधर, isn't it? So in this way you can see all the layers are there, isn't it? These are the different layers I have shown here. सेंटर का ये स्टेराइल कॉलम, ये पिंक कलर के जो दोनों भी साइड में बताया है वो स्पोरोजिनस टिश्यू का लेयर होता है, फर्टाइल लेयर, isn't it? वो स्पोर टेट्रैड्स पैदा करता है. उसके बाजू में ये जो दोनों भी लेयर है ये फोटोसिंथेटिक लेयर है, isn't it? क्लोरेनकाइमा से बनते हैं. और सबसे बाहर ये एपिडर्मल लेयर. सो इन दिस वे यू विल फाइंड दैट these are the things that are present in the Anthoceros capsule. So here again is illustration. So here you can see this spore tetrads. ये स्पोर टेट्रास यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये डोम शेप्ड दिखाई दे रहा है, ये अर्चेस्फोरियम कहते हैं इसको, दिस इज अर्चेस्फोरियम. और सेंटर में ये कॉलुमेला,
और ये नीचे फुट, isn't it? So elaters and pseudo elaters are shown here, isn't it? Sterile ये सेल्स होते हैं pseudo elaters। तो pseudo elaters जो होते हैं तो ये न्यूट्रिशन का काम करते हैं, isn't it? लिबरेशन में भी मदद करते हैं, स्पोर जब मैच्योर हो जाते हैं उसको लिबरेट करने में भी दे आर यूजफुल। ओके, सो यूनिन्यूक्लिएट बायोलेयर्ड स्पोर टेट्राइडाई, isn't it? ये यूनिन्यूक्लिएट हैप्लॉइड बायोलेयर्ड, ये 2 लेयर होते हैं, एक्सोस्पोरियम एंड एंडोस्पोरियम होता है इसके अंदर। तो इस प्रकार से ये स्पोर टेट्राइड यहाँ पर बन जाते हैं। सुडोइलेटर्स 2 लेयर्स, है ना, ये फुल्ली क्या बोलेंगे मैच्योर सेल का जो ये लेयर है, 2 लेयर्स यहाँ पर बताया है, ये मैच्योर सेल जो होते हैं। और ये वॉल है जी, दिस इज़ द वॉल, isn't it? लेकिन ये जो वॉल होती है ये इसके अंदर फोटोसिंथेसिस होती है, isn't it? तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। कॉलमेला यहाँ बताया 16 रोज है, ये बीच का कॉलमेला। स्पोर मदर सेल है, ये स्पोर मदर सेल, उसके नीचे स्पोरोजिनस टिश्यू है, उसके नीचे ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से स्पोरोजिनस टिश्यू बनते हैं, फिर स्पोर मदर सेल बनेंगे और फ्रॉम स्पोर मदर सेल स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड, है ना, स्पोर टेट्राइड्स आर प्रोड्यूस्ड। सो इन दिस वे यू विल फाइंड दैट दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ एंथोसेरॉस स्पोरोफाइट। ओके, तो ये जो स्पोर बनते हैं जिसे हम स्पोर टेट्राइड कहते हैं, तो वो कैसे? द स्पोर्स आर हैप्लॉइड यूनिन्यूक्लिएट सेमी सर्कुलर विथ कॉन्स्पिक्यूअस ट्राइरेडिएट मार्क, each spore remains surrounded by 2 wall layers। तो उसको 2 कोटिंग है, isn't it? The outermost layer is thick, ornamented and is known as exospore. It varies in color from dark brown to black। तो ये इसका कलर बताए हैं। 2 लेयर है इसके वॉल को, 2 वॉल है इसके, आउटर एंड इनर। तो इनर को बाहर का जो वॉल है उसको एक्सोस्पोर बनेगी और जो इनर लेयर है वो थिन होता है, राइट, इट इज़ कॉल्ड एंडोस्पोर। ओके, द वॉल लेयर्स एनक्लोज। अब ये दोनों जो वॉल है इसके अंदर जो मटेरियल है वो क्या है? कलरलेस प्लास्टिड होता है इसके अंदर, ऑयल ग्लोब्यूल्स होते हैं एंड फूड मटेरियल। तो ये एंडोस्पोर के अंदर, यानी अंदर ही जो एक वॉल होती है एंडोस्पोर, उसके अंदर जो मटेरियल होता है वो ये होता है कलरलेस प्लास्टिड, ऑयल ग्लोब्यूल्स एंड फूड मटेरियल। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्पोर। ओके, हियर यू कैन सी द फिगर, दिस स्पोर टेट्राइड विच इज कवर्ड विथ दिस स्पाइनी और आर्टिकुलेटेड एक्सोस्पोर, है ना, और ये इसके अंदर ये स्पोर टेट्राइड है। अब ये टेट्राइड अलग निकालेंगे आप तो उसको हम मियोस्पोर भी बोल सकते हैं। तो शुरू में ये 4 एक जगह होते हैं इसलिए इसको कहते हैं स्पोर टेट्राइड, लेकिन ये बाद में सेपरेट हो जाते हैं, isn't it? तो ये सेपरेट होने के बाद इसको हम कहेंगे मियोस्पोर और स्पोर। So it has exospore which is thick and the inner cover which is called endospore which is thin, and within this endospore there is prominent haploid single nucleus and other cytoplasmic material. So this is the organization of meiospore, isn't it? And this meiospore germinate to produce गैमेटोफाइट। ओके, तो इसका आगे फिर जर्मिनेशन होगा, और जर्मिनेशन जब होगा तो कैसा होगा? अंडर फेवरेबल कंडीशन, isn't it? स्पोर जर्मिनेट। एट द टाइम ऑफ जर्मिनेशन स्पोर एब्सॉर्ब्स वाटर, पहले तो पानी सोख लेगा वो, इट विल एब्सॉर्ब वाटर एंड स्वेल्स अप, एक्सोस्पोर रप्चर्स एट द ट्राइरेडिएट मार्क and endospore comes out in the form of tube, it is called germ tube। तो पहले एक्सोस्पोर ब्रेक होगा पानी का एब्सॉर्प्शन करने के बाद, और जो अंदर का जो लेयर है एंडोस्पोर, इट इमर्जेस आउट एज ए इन द फॉर्म ऑफ ट्यूब, एक ट्यूब के रूप में वो एंडोस्पोर बाहर
निकल आएगा एंड इट इज़ कॉल्ड जर्म ट्यूब। ओके, ये होगा। उसके बाद में फिर कंटेंट ऑफ द spore migrate into the germinal tube where the colorless plastids turn green। तो जैसा भी वो अंदर का जो मटेरियल है कंटेनिंग प्लास्टिड है ना, साइटोप्लाज्म फ्लो होगा जर्मिनल ट्यूब के अंदर, एंड एज सुन एज दिस प्लास्टिड आर एक्सपोज्ड टू द एटमॉस्फेयर इट टर्न्स ग्रीन। तो उसके अंदर फिर प्लास्टिड के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट बनना शुरू हो जाते हैं और it becomes a chloroplast. Two successive transfer wall are laid down at the tip of the germinal tube resulting in the formation of three-celled filament। तो धीरे धीरे फिर माइटोसिस होना शुरू हो जाता है और फिर सेल्स बढ़ना शुरू हो जाता है, राइट। द अपर सेल डिवाइड्स बाय वर्टिकल डिवीजन फॉलोड बाय सिमिलर वर्टिकल डिवीजन इन लोअर सेल एंड देन इट बिकम्स ए क्वाड्रेंट स्टेज। ये क्वाड्रेंट स्टेज बन जाता है, धीरे धीरे सेल डिवीजन हो करके क्वाड्रेंट स्टेज एक्वायर कर लेता है। सो हियर यू कैन सी द फिगर, दिस इज द स्पोर, इसके ऊपर ये मार्किंग होता है इस प्रकार से, ट्राइरेडिएट मार्किंग। ये स्पोर क्या करता है, पहले वाटर एब्सॉर्ब कर लेता है, isn't it? After absorbing water, the exospore cracks, ये ब्रेक हो जाता है एक्सोस्पोर, और अंदर का जो एंडोस्पोर है इट इमर्जेस इन द फॉर्म ऑफ जर्म ट्यूब। ये जर्म ट्यूब के रूप में बाहर आ जाता है एंडोस्पोर। फिर बाद में ये डिवाइड होना शुरू हो जाता है, ये ऊपर का सेल नीचे का सेल, इधर फिर धीरे धीरे ये बढ़ते जाता है, इधर दिस ट्यूब germ tube is extending and cell division continues and this is a quadrant stage। फिर इसके बाद में ये क्वाड्रेंट स्टेज बनने के बाद ये इसका डिवीजन इस प्रकार से होते रहेगा और फिर ये इस प्रकार से ये निचले जो हिस्से वाली सेल है इट एक्ट्स एज ए राइजोइडल सेल। फिर यहाँ से ये राइजोइड डेवलप शुरू हो जाता है और ये ऊपर का हिस्सा थैलस बनेगा। दिस पोर्शन विल become thallus and this lower cells become rhizoids। तो इस प्रकार से धीरे धीरे फिर ये गैमेटोफाइट में बदल जाएगा। So in this way you will find that this zygote this spore germinates। स्पोर का इस प्रकार से जर्मिनेशन होगा विच इज़ हैप्लॉइड स्पोर एंड दिस हैप्लॉइड स्पोर अल्टीमेटली प्रोड्यूसेस a haploid thallus which is called gametophyte। तो इस प्रकार से ये पूरा एंथोसेरस का ये जर्मिनेशन होता है स्पोर का। Now here you can see this entire life cycle is illustrated। So here you can see this gametophytic plant, then it produces archegonium and antheridium, male and female sex organs, male gamete, female gamete, then fertilization, zygote formation, and this zygote formation initiate sporophytic phase। So here you can see two phases are indicated, isn't it? So this somewhat dark portion indicates sporophytic phase in the life cycle of Anthoceros, and this half portion indicates gametophytic phase in the life cycle of Anthoceros। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया ये मेल और फीमेल गैमेट undergo fertilization and zygote is formed, and this zygote undergo division, dyad and tetrad stage is acquired। So lower cells produces rhizoids, isn't it? This 4-cell embryo, and it will produces sporophyte, isn't it? rhizoid नहीं sporophyte तैयार होगा, isn't it? तो ये zygote जो है तो जर्मिनेट होते जाएगा और यंग क्या बोलेंगे स्पोरोफाइट डेवलप होगा, isn't it? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, you can see this is the sporophyte, isn't it? And ये mature sporophyte। So here you can see this
थैलस, एंड थैलस के ऊपर ये स्पोरोफाइट ऐसा दिखेगा, तो ये कैप्सूल है, इसका फुट और ये उसका कैप्सूल, फुट और कैप्सूल है ना, ये बाहर से ऐसा दिखेगा, थैलस और ये स्पोरोफाइट। फिर बाद में यहाँ पर ये स्पोरोफाइट के अंदर हैप्लॉइड स्पोर इस प्रकार से बनेंगे, और जैसा ये स्पोर बनेंगे, इजंट इट, और ये जैसा भी हैप्लॉइड स्पोर बनते जाएंगे टेट्राइड, तो ये इमिडिएटली इट विल एंटर इनटू गैमेटोफाइटिक फेज। अब यहाँ ये टेट्राइड जो है इट इंडिकेट गैमेटोफाइटिक जनरेशन, यहाँ से गैमेटोफाइटिक जनरेशन शुरू हो जाएगा। यहाँ पर देखिए तो मियोसिस लिखा है, रिडक्शन सेल डिवीजन, तो मियोसिस होने के बाद यहाँ पर गैमेटोफाइटिक फेज शुरू हो गया, तो स्पोर टेट्राइड, फिर ये स्पोर और स्पोर का जर्मिनेशन, और फिर से ये गैमेटोफाइटिक प्लांट। सो इन दिस वे यू कैन सी दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ एंथोसेरस, इज इट। तो यहाँ पर ये क्लियर मार्क हो गया है, इज इट। तो दिस इज द पोर्शन, और ये हैप्लॉइड फेज, ये इधर का हिस्सा, और ये जो है तो ये गैमेटोफाइटिक फेज, इज इट। सो इस प्रकार से आप देखते हैं कि एंथोसेरस का ये जीवन क्रम है, लाइफ साइकिल ऑफ एंथोसेरस। सो आई थिंक यू अंडरस्टूड दिस एंटायर प्रेजेंटेशन। यहाँ पर ये और वही फिगर है लाइफ साइकिल का, सेम थिंग इज इलुस्ट्रेटेड इन कलर, इजंट इट। तो ये गैमेटोफाइटिक थैलस, दिस इज अर्चिगोनियम, आर्थेरिडियम, देन फीमेल गैमेट, मेल गैमेट, इजंट इट। फर्टिलाइजेशन के बाद ये जाइगोट, इजंट इट, जाइगोट तैयार होता है फर्टिलाइजेशन के बाद, और इमिडिएटली ये डिप्लॉयड फेज शुरू हो गया, यानी स्पोरोफाइटिक फेज शुरू हो गया। तो ये जाइगोट का जर्मिनेशन और ये स्पोरोफाइट फॉर्मेशन, फिर स्पोरोफाइट के अंदर स्पोरोजिनस मदर सेल है, उसका मियोसिस होता है, और मियोसिस होते ही द प्लांट एंटर्स इनटू गैमेटोफाइटिक phase. So here you can see spore tetrad, and this spore germinate, and it gives rise to again gametophytic young plant. So in this way this is the life cycle. Okay, hope you understood this presentation. So view this presentation repeatedly and prepare your own notes. Okay, so thank you friends, thank you very much.